Hello everyone, welcome again in my next lecture on measure and integration. Today's topic is functions of bounded variations. So let us take the definition of function of bounded variation. Let f be a function from a closed interval into R, the set of real number, and let p be a partition of this closed interval AB, which is a is equal to x0 less than x1 less than x2 and so on equal to xn is equal to b. So हमने इस ए बी इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. Then variation of function f with respect to partition p is denoted and defined by VABF, P, which is equal to summation j is equal to 1 to n modulus fxj minus fxj minus 1. मीन्स क्या हुआ, ये जो हमने पार्टीशन लिया था, ये इसमें बीच बीच में जो पॉइंट ले रखे हमने इतने x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn, इन पॉइंट्स पर हमने फंक्शन की वैल्यू ली और सक्सेसिव पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है उनका डिफरेंस लिया, फिर उसका मॉडुलस लिया और उन सबको सम कर दिया. इफ दिस सम इज लेस देन फाइनाइट नंबर, इस सम को तो हम बोलेंगे वेरिएशन ऑफ फंक्शन f ओवर पार्टीशन p. एंड इफ इन p को हम वेरी कराएंगे मीन्स और दूसरा कोई पार्टीशन ले, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दें या घटा दें, जितने भी पॉसिबल पार्टीशन हो सकते हैं वो सब लिए, एंड इफ दिस वेरिएशन इज लेस देन equal to a finite positive number, then the function f is said to be of bounded variation. So I have written this in next definition. The function f is said to be of bounded variation on AB if there exists a number k greater than 0 such that a to b f p less than equal to k over all partition p of AB. Next, the total variation. What is total variation? Total variation is denoted by TABF, and this is supremum of the variations of f over all partition p. This is called total variation. So we can also say that a function f is of bounded variation if the total variation is less than equal to a finite positive number k. Next, we can understand this with the help of this figure. से ये फंक्शन है f ऐसे और ये a b इंटरवल है, इसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया है. मान लीजिए ऐसे ये xn-1 पॉइंट है, इधर xn है, तो ये जो इतना डिफरेंस आता है, ये जो वैल्यू आता है, ये ऐसे सक्सेसिव पॉइंट्स पर ये सम करेंगे हम, तो हम इसको वेरिएशन बोलते हैं. नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट an elementary theorem on this. If f is a bounded monotonic function on AB, then f belongs to B VAB. ये एक नया नोटेशन हमने लिखा है. This is the set of all functions of bounded variation on interval AB. So क्या कहा है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि f अगर बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन है then f will be of bounded variation. And the second theorem is if f is a function of bounded variation then f is bounded but converse is not true. So let us take proof. Without loss of any generality, let us assume f is monotonic increasing and bounded on AB. Then x2 greater than equal to x1 implies fx2 greater than equal to fx1. ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी है. क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिक दिया है तो देन आइदर इट विल बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो हमने पहले इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ले लिया. एंड बाउंडेड भी दिया है तो fx लेस देन इक्वल टू m, ये हमने बाउंडेड की प्रॉपर्टी ले ली. नाउ लेट अस टेक ए पार्टीशन p ऑफ दिस. ये पार्टीशन हमने लिया है, जैसे पहले लिया था a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन लेस देन xn इक्वल टू b. और इस पार्टीशन पर हमने वेरिएशन ले लिया a टू b f p. दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस. सिंस f is monotonic increasing function, so fxj greater than equal to fxj minus 1, and so ये मॉडुलस को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये आ गया. एंड नाउ इफ वी open the summation, then this quantity will be
इक्वल टू fx1 माइनस fx0 प्लस fx2 माइनस fx1 प्लस एंड सो ऑन प्लस fxn माइनस fxn माइनस 1। यहाँ पर fx1 इस fx1 से कट जाएगा, एक fx2 ये आया है माइनस आगे आएगा वहाँ से कट जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट में fxn माइनस 1 है, ये fxn माइनस 1 यहाँ पर पॉजिटिव भी आया होगा उससे कट जाएगा। बट fxn और fx0 ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो एक ही बार आएंगी, सो केवल हमारे पास ये बच जाता है। सो वेरिएशन ऑफ फंक्शन f ओवर पार्टीशन p, दिस इज fxn माइनस fx0 और दिस इज fb माइनस fa। सिमिलरली यहाँ पर हम अगर दूसरा पार्टीशन लें तो भी ऐसे ही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि पार्टीशन के जो बीच के पॉइंट है उन पर तो ये वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही, केवल इनिशियल और लास्ट पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। सो अगर दूसरा पार्टीशन लेंगे तब भी आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से जितने पार्टीशन लिए हमने उन सब पर वेरिएशन यही आएगा, और उन सब वेरिएशन का अगर हम सुप्रीमम लेंगे देन दिस विल बी fb माइनस fa, वही आएगा। सो टोटल वेरिएशन ऑफ f on interval AB is fb minus fa. Similarly, if we take f monotonic decreasing function, then ये वैल्यू बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे हमने ऊपर किया, बस ये fa माइनस fb आ जाएगा। एंड कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट, चाहे वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, देन वी कैन राइट दिस tab f इज इक्वल टू fb माइनस fa, मॉडुलस लगा दिए इसमें, and this is less than equal to fb plus modulus fa. Since this is a bounded function, so fb less than equal to m, fa less than equal to m, or this is less than equal to 2m, where m is a positive finite number. Hence f is a function of bounded variation. Now next theorem, if f is a function of bounded variation, then f is bounded but converse is not true. For this, let us take a partition P which contains only 3 points a, x, b. Then as the function is of bounded variation, so variation of function f over this partition will be finite, and we take this va to bfp, ये वैल्यू हमने रखी वेरिएशन की, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन। क्योंकि टोटल वेरिएशन जो होता है, टोटल वेरिएशन वो सुप्रीमम होता है ओवर ऑल पार्टीशन p। ये जो वेरिएशन जितने हैं इन सब का सुप्रीमम आएगा, वो टोटल वेरिएशन होता है। सो टोटल वेरिएशन हमेशा ग्रेटर होगा इससे, सुप्रीमम रिमूव करेंगे तो ये प्रॉपर्टी है सुप्रीमम की। सो वी कैन राइट मॉडुलस fx माइनस मॉडुलस fa, दिस इज लेस देन इक्वल टू fx माइनस fa, and this is less than equal to fx minus fa plus fb minus fx, ये क्वांटिटी एक एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पे, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू tabf। देखिए ये टर्म है, ये तो ऐसे ही है, प्लस एक हमने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये ग्रेटर हो गया यहाँ सिंबल ये, एंड दिस टर्म इज लेस देन दिस tabf, तो ये लिख दिया। एंड since the function is of bounded variation, so this is less than equal to k, where k is some finite positive number. So fx यहाँ आया, इस fa को हम इधर ले गए, प्लस हो गया, so fx less than equal to k plus modulus fa, and hence f is bounded. But converse is not true, and for this part let's take an example. Let f be a function from closed interval 0 1 to r. Then fx is equal to x sin pi upon x if x is not 0, and 0 if x is equal to 0. ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सो अगर यहाँ देखें मॉडुलस fx, यहाँ मॉडुलस लग गया और ये सब इधर, सिंस x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, sin पाई अपॉन x साइन फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, तो ओवरऑल जब हम मॉडुलस लेंगे तो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगी ये, और यहाँ 0 है। इट मीन्स fx इज लेस देन इक्वल टू 1, hence function is bounded, but f is not of bounded variation, and for मतलब ये जो हमने लिखा है इसके लिए दे रहे हैं, for हमने इसके लिए लिखा है, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, let p be a partition, क्योंकि इंटरवल 0 और 1 है। मान लीजिए 0 यहीं पर ले लो, सपोज करो ये 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 से इधर को चलेंगे 2/3, फिर लेफ्ट में चले 2/5, फिर लेफ्ट में चले 2/7 एंड सो ऑन, फिर इधर आएंगे 2/2n + 1, फिर इधर आएंगे 2/2n + 1 कोमा एंड सो ऑन, और इधर के फिर 0। तो ये जो पॉइंट है ये सब 0 की तरफ को बढ़ रहे हैं,
तो दिस इज ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 1, और इस पार्टीशन पर हम वेरिएशन लेंगे फंक्शन का, एंड दैट इज दिस फंक्शन का वेरिएशन है सीधे सीधे, यानी f1 माइनस f2/3 प्लस f2/3 माइनस f2/5 एंड सो ऑन। यहाँ पर वैल्यूज़ हमने ये निकाली हैं 0, 2/3 इतने इतने। सिंस अगर किसी जनरल पॉइंट पर वैल्यू हम निकालने की कोशिश करें तो x की वैल्यू 2/2n+1 ली, विच इज इक्वल टू x साइन π/x, तो x तो हो गया 2/2n+1 इंटू साइन π/x, यानी ऊपर जाकर के ये 2n+1 π/2, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड द वैल्यू ऑफ दिस +-1, तो +-1 इंटू दिस इज +-2/2n+1, और ये सब वैल्यू हमने ऊपर रखी है, सिंप्लीफाई किया इसको, ये सब दो बार वैल्यू आ रही हैं, सिंप्लीफाई किया, ये सीरीज आ गई हमारे पास। एंड एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जो सीरीज आती है ये हो जाएगी 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यू कैन सी, go to real analysis, sum of series is a very elementary series, the sum of this series is infinity, hence as n tends to infinity this tends to infinity, and we can write the total variation 0 to 1 f is not equal to less than m. No, this is not less than m. M is a finite positive number, and hence f is not of